हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है द बुक्स। इट्स गोना बी अबाउट द बुक्स दैट आर टू बी यूज्ड इन द फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस। जो फर्स्ट प्रॉफ स्टूडेंट्स होते हैं हु आर वेरी न्यू टू एमबीबीएस एंड हु हैव जस्ट स्टेप्ड इनटू दिस करियर, एंड उनका फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं एंड विच पर्सनली आई हैव यूज्ड, जिन बुक्स का मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू टुडे. Those of you who are new to this channel, hi, my name is Agosh. I'm a third year MBBS student at Government Medical College Jammu, and welcome to my YouTube channel. So let's start the video without any further ado, because काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, so I don't want the video to be too long for you. So first of all, there are three subjects in first year. We have anatomy, we have physiology, and we have biochemistry. So let's start one by one with the books. So let us get started with the very first subjects, that is anatomy. Anatomy में what our college and I suppose most of the medical colleges ये ही book prefer करते हैं पढ़ना. That is called the BD Chaurasia. It's anatomy की BDC, the most I think reliable and the standard book for anatomy. You can have a look. I don't have a very latest edition because मैंने 2019 में ली थी. That's 2 years back from now. And it has 4 volumes. This is the first volume of it. It says upper limb and thorax. There's the first volume. Then we also have got a second volume that says lower limb, abdomen and pelvis. Next we have the third volume of BDC. It says head and neck. And the last 4 volumes है इसकी. You can see the anatomy क्या कितना voluminous syllabus होता है. And then we have a fourth, that's brain neuroanatomy. There's also a very small general anatomy की book भी आपको इसके साथ मिलती है. I'll show you that also. This is basically a very small short book of general anatomy जो आपको इन 4 books के साथ मिलती है. And I suppose BDC एक काफ़ी standard book है all across India. Almost I would say 99% of the government medical colleges या कोई भी peripheral medical colleges में यही book चलती है, यही book follow की जाती है. I know some of the AIIMS students also use Gray's Anatomy, but what I have experienced is वो थोड़ी सी ज़्यादा high level की हो जाती है. But yes, there are 2 editions in Gray's Anatomy also. There's a student edition of Gray's Anatomy as well that you can definitely purchase अगर आपका मन है to sort of go beyond this book. अगर आपको लगता है कि हाँ I have sort of mastered this and I want to explore more in this subject. जो किसी किसी को anatomy काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे भी personally anatomy काफ़ी अच्छी लगी थी, but मैंने online ही PDF arrange किया था Gray's का. I didn't buy the book, it's costlier than this, इसलिए मैंने वो नहीं खरीदी थी. But this is the standard book of anatomy. I'll add the links to these important books in my description box. Check that out. Then we have our next subject, that is physiology. The most boring subject. मुझे personally physiology बिल्कुल पसंद नहीं आई कभी भी पूरे first year में. I didn't like it at all. But you have to study it. ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सबको अच्छी ना लगे वो subject. But the standard book for physiology, and this is again a standard book followed all across India, I suppose, is the South Asian edition of Guyton and Hall. This is the book you can see, Guyton and Hall. It's a very voluminous book. You can see फिजियोलॉजी की ये बुक है, मेडिकल फिजियोलॉजी की. इट्स गाइटन एंड हॉल. काफ़ी सारे कॉलेजेस में बहुत बुक्स चलती हैं, लाइक यू हैव AK जैन, यू हैव इंदु खुराना, काफ़ी सारी फिजियोलॉजी की बुक्स हैं. बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, पर्सनली मेरे कॉलेज में भी, वी हैव गाइटन एंड हॉल का ट्रेंड एंड वी स्टडी पेज टू पेज, कॉर्नर टू कॉर्नर. हम गाइटन एंड हॉल ही पढ़ते हैं. देर आर सम अदर बुक्स ऑल्सो, एज आई सेड, इंदु खुराना है, AK जैन है. लाइक फॉर एग्जाम्पल जो MAMC दिल्ली में, बिकॉज उनके प्रोफेसर हैं वहाँ पे डॉक्टर AK जैन, तो उनको दे आर सॉर्ट ऑफ बाउंड टू गेट दैट बुक बिकॉज उनके वहाँ पे सारे एग्जाम्स एंड ऑल ऑफ दैट सेट होता है उस बुक से. तो दे आर सॉर्ट ऑफ यू नो उनको खरीदनी पड़ती है वो वाली बुक. बट आई थिंक गाइटन एंड हॉल अगर आप लेते हैं, इट्स इक्वली एक्सीलेंट बुक. It's amazing book, I suppose. It gives you every sort of important knowledge, and readable भी है. I won't say बहुत ज़्यादा voluminous है. It is readable, conceptual book है, standard book है. आप एग्जाम से पहले भी इसको पढ़ सकते हैं, इतना भी ज़्यादा voluminous ये book नहीं है. Then I also have a separate book for physiology. मैंने Genong भी ली हुई थी because when I was in first year, तब कोविड ने हिट किया था, फर्स्ट वेव थी, एंड इट
वॉज वेरी लॉन्ग, काफ़ी ब्रेक, लाइक 8 months का गैप आ गया था। तो मैंने गाइटन फिनिश कर ली थी, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ गाइटन को फिर से छूने का, तो आई शिफ्टेड टू अनदर बुक। इट्स कॉल्ड गेनोंग रिव्यू ऑफ द मेडिकल फिजियोलॉजी। ये एक रिव्यू बुक है। I'll explain you the difference between a standard and a review book. This is a review book. Review का मतलब होता है whenever you have studied already from a standard book, उसके बाद आपको review book पे जाना चाहिए। Review book आपको basically 4-5 standard books का amalgamation एक book में देती है। So आपको काफ़ी सारे इसमें concepts तब तक clear नहीं होंगे unless and until you'll study a standard book first. You have to go through the standard books first. Like I said, Guyton, Guyton, A.K. Jain, Indu Qurani, ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। एंड देन दीज बुक्स आर लाइक द गेनोंग एंड ऑल आर लाइक मेडिकल रिव्यू बुक्स, लाइक यू कैन जस्ट रिव्यू इट। एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए होंगे, बट टू जस्ट ब्रश अप ऑन द कॉन्सेप्ट्स आपको ये दिए होंगे। तो मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत इसको देख लिया था, मेन यूनिट लाइक CVS CNS मैंने इससे देख के गया हुआ था मैं। सो दैट्स अबाउट फिजियोलॉजी। आई डोंट थिंक आपको फिजियोलॉजी में कुछ भी एक बुक के अलावा चाहिए होता है। हाँ, एग्जाम से पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो ट्राई एंड बाय अ बुक कॉल्ड जोशी। जोशी इज़ बेसिकली अ वेरी स्मॉल बुक जो आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए ले सकते हो। इट इज़ बेसिकली, आई डोंट हैव द बुक करंटली विद मी, बट इट्स अ वेरी स्मॉल बुक ऑफ फिजियोलॉजी। उसमें क्वेश्चन एंड आंसर टाइप में आपको पूरी की पूरी थ्योरी दी है। सो इट्स वेरी ईजी टू फ्रेम आंसर्स फ्रॉम दैट बुक। सो उसकी वजह से यूनिवर्सिटी में बच्चे कैन स्कोर गुड। देन द नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होता है हमारा, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। जो सब्जेक्ट आप पूरा साल कुछ नहीं पढ़ोगे। आई एम वेरी श्योर दिस हैपन्स विद एवरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। जैसे सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी कोई नहीं पढ़ता पूरे साल, फर्स्ट ईयर में बेचारी बायोकेमिस्ट्री साइड ट्रैक कर देते हैं सारे लोग। बट प्लीज़ 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 ऐसा मत करो। बायोकेमिस्ट्री इज़ एक्सीलेंट सब्जेक्ट, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ये। लिटरली मैंने भी स्टार्टिंग में ये गलती की थी कि मैंने भी काफ़ी टाइम ये नहीं पढ़ा, जस्ट बिकॉज आई हर्ड कि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, एग्जाम से 1 महीना पहले भी कर लोगे तो हो जाएगा। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप अगर एग्जाम से पहले 1 महीना पहले किताब खोलोगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला बायोकेम। सो प्लीज़ पूरे साल अगर आप एनाटॉमी फिजियो पढ़ते हो तो उसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ो। नाउ फॉर द बायोकेमिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस मैंने पर्सनली देखा है हार्पर्स पढ़ते हैं। हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री की बुक है विच इज़ फॉलोड इन एम्स, दिल्ली एम्स, ऑल पेरिफेरल एम्स एंड ऑल्सो काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस में हार्पर्स पढ़ी जाती है। बट ऑन लाइक इन माई कॉलेज पर्सनली स्पीकिंग, हमारे यहाँ पे ट्रेंड है सत्यनारायण का एंड वासुदेवन का। सो आई हैव सत्यनारायण, मैंने सत्यनारायण से पढ़ा है पूरा साल, एंड इट्स अ वंडरफुल बुक, लेट्स बी ऑनेस्ट। मेरे को तो कोई भी डिफरेंस हार्पर्स उसमें बिल्कुल भी नहीं दिखा। हार्पर्स इज जस्ट एक ट्रेंड बन जाता है किसी बुक का और वो फेमस हो जाती है, बट सत्यनारायण इज़ एक्सीलेंट। काफ़ी सारे नॉर्थ के मेडिकल कॉलेजेस में सत्यनारायण चलती है और काफ़ी सारे कॉलेजेस में वासुदेवन चलता है। लाइक हमारे कॉलेज में यहाँ पे सत्यनारायण चलती है एंड वी हैव अ डिफरेंट मेडिकल कॉलेज कॉल्ड एस्कॉम्स है, वहाँ पे काफ़ी टीचर्स लाइक टू फॉलो वासुदेवन। सो बट आई थिंक कॉन्सेप्ट्स कहीं किसी भी बुक में अलग तो कुछ लिखा नहीं होगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। सो दैट इज़ अबाउट द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको ट्रस्ट में कोई भी और सब्जेक्ट लेने, कोई भी और बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे ओनली 1 बुक इज सफिशिएंट, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा। नाउ फॉर एनाटमी के लिए स्पेसिफिकली कुछ और भी सब्जेक्ट्स एनाटमी में अमेलगमेटेड होते हैं। एनाटमी सिर्फ वो जो BD चौरसिया वाली है वो नहीं होती। वी हैव एनाटमी में वी हैव एम्ब्रियोलॉजी, वी हैव हिस्टोलॉजी, तो उनकी बुक्स भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो मैंने एनाटमी की आपको पहले BD चौरसिया दिखाई थी, दैट वाज द थ्योरी पार्ट ऑफ एनाटमी। सो नाउ वी हैव द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी हमारी एनाटमी का ही एक हिस्सा होता है। हिस्टोलॉजी की बुक वैसे आपको अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैंने ली थी क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि ले लो, और हमने फ्लो में, बिकॉज फर्स्ट ईयर्स को काफ़ी जोश होता है पढ़ने का, सो मैंने ले ली थी। एंड दिस इज इंदरबीर सिंग्स ह्यूमन हिस्टोलॉजी, बट आई सपोज आपको नहीं लेनी चाहिए, कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको हिस्टोलॉजी का एटलस ज़रूर लेना चाहिए, जिसमें आप जब भी हिस्टोलॉजी की आपके प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, आप माइक्रोस्कोप में कुछ देखोगे आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा। सो आपको एक एटलस ले लेना चाहिए। लाइक मैंने डिफ्योरे का एटलस लिया हुआ था। काफ़ी सारे एटलस मार्केट में आते हैं, बट पर्सनली हमारे कॉलेज में ये वाला एटलस चलता है, साउथ एशियन एडिशन ऑफ डिफ्योरे। एंड दैट वाज अबाउट द हिस्टोलॉजी बुक इंदरबीर सिंह। आप लो ना लो, इट्स योर चॉइस, आई डोंट थिंक आपको लेनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी की बुक आती है। डेफिनेटली आई विल रिकमेंड बाय एन एम्ब्रियोलॉजी बुक। मेरे पास इंदरबीर सिंह की एम्ब्रियोलॉजी थी, मैंने इंदरबीर सिंह को ही दिस बुक को ही फॉलो किया है फॉर एम्ब्रियोलॉजी। इट्स एन एक्सीलेंट बुक, एक्सीलेंट, ट्रस्ट मी, बहुत सुंदर बुक है एम्ब्रियोलॉजी की, बहुत प्यारी बुक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एम्ब्रियोलॉजी आप इससे पढ़ सकते हो, आपको आगे ऑब्स गाइनी में भी ये हेल्पफुल होगी बहुत ज़्यादा।
देन हमारे पास एनाटॉमी में एक आता है डाइसेक्टर्स। डाइसेक्टर बुक्स जो होती हैं, जब आप डाइसेक्शन हॉल में जाते हो उस टाइम पे आपको डाइसेक्टर्स साथ लेके जानी होती है, वहाँ पे आप BDCs अलाउड नहीं होती डाइसेक्शन हॉल्स में। तो हमारे कॉलेज में ग्रांट्स डाइसेक्टर हमारे ईयर में काफ़ी चला था, ग्रांट्स का डाइसेक्टर। बट काफ़ी सारे लोग दूसरे डाइसेक्टर्स भी लेते हैं, काफ़ी सारे फेमस डाइसेक्टर्स हैं। बट हमारे कॉलेज में इन माई बैच 2019 में ग्रांट्स का डाइसेक्टर चलता था। आई डोंट थिंक अब ये चलता है हमारे कॉलेज में। हमारे कॉलेज में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं डाइसेक्टर्स एंड ऑल में। सो आई थिंक दैट्स ऑल। एनाटमी में BD चौरसिया, फिजियोलॉजी में गाइटन एंड बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण आर द 3 मोस्ट फॉलोड बुक्स इन माई कॉलेज। इन स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा आई डोंट थिंक आपको किसी भी और ट्रैप में पढ़ना चाहिए फर्स्ट ईयर में। जो भी सीनियर अगर आपको कल को गाइड करता है कि डोंट स्टडी स्टैंडर्ड बुक्स, का जाके कल को कोई छोटी मोटी रिफ्रेशर टाइप लेके पढ़ लो, प्लीज़ डोंट डू दैट। फर्स्ट ईयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिक साइंसेस जिनको हम बोलते हैं होते हैं। अगर आपको यही सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हुए, आपकी पूरी MBBS की बेस ही नहीं बन पाएगी। सो फर्स्ट ईयर में आई विल हाईली रिकमेंड यू, प्लीज़ स्टैंडर्ड बुक्स को रीड करो। गाइटन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि इसका लैंग्वेज ही मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ बट डोंट लूज़ योर होप, कीप स्टडिंग। आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि हाँ अब मुझे क्लियर हो रही हैं चीज़ें। एंड BD चौरसिया इज़ अ वंडरफुल बुक। डोंट गो फॉर ग्रेज। मैं कभी भी ग्रेज के लिए आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत पढ़ो, बट देयर इज़ नो नीड टू स्टडी ग्रेज एट फर्स्ट ईयर लेवल। आपको काफ़ी मतलब अच्छी लगेगी BDC। इट्स अ वंडरफुल बुक। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आप कोई भी बुक की ज़रूरत पड़ेगी पूरी MBBS में एनाटॉमी के लिए। सो दैट्स वंडरफुल बुक्स and that's all. I think if you like this video, hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon and get notified whenever I post next. And I wish you all the best. First year is going to be a little tough क्योंकि 11th और 12th से आप जस्ट अभी आए होते हो एंड इट्स वेरी न्यू फॉर यू। एंड आई थिंक आपके सीनियर्स जो भी आपके कॉलेजेस में होंगे, दे विल हेल्प यू, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। एंड आपको झिझकना नहीं चाहिए हेल्प लेने के लिए, बिकॉज सीनियर्स नो हाउ टू स्टडी, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। एंड गो आस्क योर सीनियर्स फॉर हेल्प and yeah, subscribe to my channel and take care until next time.